সাগর হে দাসে করুণা করে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল সাগর হে দাসে ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল সাগর হে দাসে করুণা করে দিয়া পদ ছায়া সুদ হে আমারে তোমার চরণ ধরে তোমার হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর হে দাসে করুণা করি দিয়া পদ ছায়া সুদ হে আমারে দিয়া পদ ছায়া তোমার চরণ ধরে তোমার চরণ ছায়া বেগাদমে ছায়া দশদি ছায়া গুণ দেহ দাসে ছায়া বেগাদমে ছায়া দশদি ছায়া সদ সঙ্গ দেহ হে আমারে প্রভু ছায়া সত সঙ্গ দেহ হে আমারে দেহ হে আমারে বসেছে সঙ্গের আসে বসেছে সঙ্গের আসে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল সাগর হে দাসে করুণা করে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল সাগর একাকে আমার নাহি পায়ব হরি নাম সংকীর্তনে ও একাকে আমার নাহি পায়ব হরি নাম সংকীর্তনে প্রভু তুমি কৃপা করি তুমি কৃপা করে শ্রোতা বিন্দু দিয়া তুমি কৃপা করে দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে দেহ কৃষ্ণ ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল সাগর হে দাসে করুণা করে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল সাগর হে দাসে করুণা কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে তোমার শক্তি আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙ্গাল আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙ্গাল
ধাই তব পাছে পাছে ধাই তব পাছে পাছে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এরা সে করুণা করি বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার दिया पदा छाया सुधा है आमरे दिया पदा छाया तुम्हारा चरण धूरी तुम्हारा चरण जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे परम करुणा बहुत विजन दोनों का हो जाएगा पिताई और चंद दो ताल बजेगा अभी थोड़ा अच्छा से बजेगा परमा करुणा बहुदय जना निताय गौर चंद्र सवय अवतार सरशिरोमणि सवय अवतार केवल आनंद कांद केवल केवल आनंद कंद केवल आनंद परम करुणा बहुदय जना निताय गौर चंद्र सवय अवतार शिरोमणि सवय अवतार शिरोमणि केवल आनंद कांद केवल आनंद केवल आनंद कांद केवल नित्यानंद गौरचंद्र केवल आनंद कंद नित्यानंद गौरचंद्र केवल भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी भज भज भाई विषय छड़िया शिरो से मोजिया विषय छड़िया शिरो से मोजिया विषय छड़िया शिरो से मोजिया मुखे बल हरे हरे मुखे बल हरे परम
করুণা বহুতই জানা নিতাই গৌর চন্দ্র পরম করুণা বহুতই জানা নিতাই গৌর দেখো রে ভাই ত্রিভুবনে নাই দেখো রে ভাই এমন দয়াল দাতা ও এমন দয়াল দাতা পশু পাখি ঝুরে পাষাণ বিদরে পশু পাখি ঝুরে শুনি যার গুণ গাথা শুনি যার গুণ শুনি যার গুণ গাথা শুনি যার গুণ পরম করুণা বহুদয় জানা নিতাই গৌর চন্দ্র পরম করুণা বহুদয় জানা নিতাই গৌর সংসারে মজিয়া রহিলে পরিয়া সে পদে রহিল সে পদে রহিল আশা আপন করম যায় সমন আপন করম আপন করম যায় সমন আপন করম যায় সমন কইল জনদাস কহে লোচন দাস কহে ও পরম করুণা বহুদূর জানা নিতাই গৌর চন্দ্র পরম করুণা বহুদূর জানা নিতাই গৌর জয় নিতাই গৌরঙ্গ জয় নিতাই গৌরঙ্গ নিতাই গৌরঙ্গ জয় নিতাই গৌরঙ্গ নিতাই গৌর হরি গো হরি গো হরি গো হরি গো নিতাই গৌর হরি গো হরি গো হরি গো हरि अरे एक मनपसंद आपका कीर्तन सुना दो इनकी इच्छा हुई अब कृष्ण का होएगा कौन सा शरणागति कोई सा भी शरणागति कोई सा भी आपकी इच्छा सुना दो आप खुशबू आएगा आप संगीत तो जरूर है पास में तू भक्ति अनाकुला जिजिकार जहा परम जतने करिब निश्चय जिकार जहा परम जतने ताहा करिब निश्चय भक्ति अनुकूल जत
বিষয় সংসারে করিব তাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ভক্তি অনুকূল যত বিষয় সংসারে করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে তো ভক্তি অনুকূল যে যে কার্য পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয় তোয়া ভক্তি অনুকূল যে যে কার্য পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয় ভক্তি অনুকূল যত বিষয় সংসারে করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ভক্তি অনুকূল যত বিষয় সংসারে করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের শুনিব তো মার কথা যতন করিয়া দেখিব তোমার নয়ন ভরিয়া শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া দেখিব তোমার নয়ন ভরিয়া তুয়া ভক্তি অনুকূল যে যে কার্য পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয় তুয়া ভক্তি অনুকূল যে যে কার্য পরম যতনে তাহা করিব তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণা নৈবেদ্য তুলসী ঘাস করিব গ্রহণ তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণা নৈবেদ্য তুলসী ঘাস করিব করদারে করিব তোমার সেবা সদা তোমার বসতি স্থলে বসিব সর্বদা করদারে করিব তোমার সেবা সদা তোমার বসতি স্থলে বসিব সর্বদা তুয়া ভক্তি অনুকূল যে যে কার্য
পরম যতনে তাহা করিব নিষ্ঠায়। তুয়া ভক্তি অনুকূল যে যে কাজ তোমার সেবায় নিয়োগ করিব, তোমার বিদেশী জনে ক্রোধ দেখাইব। এই রূপে সর্ববৃত্তি আর সর্ববা তুয়ায়ন কুলায়ে লবুক প্রভা। তুয়া ভক্তি অনুকূল যে যে কার্য পরম যতনে তাহা করিব নিষ্ঠায়। তুয়া ভক্তায়ন কুলা যাহা যাহা করি, তুয়া ভক্তি অনুকূল বলি তাহা ধরি। ভকতি বিনোদ নাহি জানে ধর্ম ধর্ম, ভক্তি অনুকূলতা ও সর্বকর্ম। তুয়া ভক্তি অনুকূল যে যে কার্য পরম যতনে তাহা করিব নিষ্ঠায়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল।
गौर परमानंदे हरि हरि बोल। ठीक, इसको ना साइड में रख दो, गिर नहीं जाए कहीं, वहाँ पीछे रख दो, यहाँ रख दो। ठीक है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै पदालयै कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे नहीं पता था सब मानस सरोवर में बैठे हैं। भाई ठीक है, बोर्ड एग्जाम है ना अभी, बोर्ड एग्जाम है ना अभी, पढ़ता भी है कि नहीं? बहुत अच्छा, सब यहीं बैठे हैं। हैं? अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, मैं वो राधाकांत को भी मैं कह रहा था, जो बच्चा ना दूसरा 12th में है राधाकांत, एक उसको भी बोल रहा 12th में है, ठीक से पढ़, बाद में ये सब होता रहेगा जीवन भर। ठीक है, मैंने ये सोचा है आपके मन में जो प्रश्न है, ठीक है, मुझे पता है बहुत सारा है, तो इसलिए आप लोग शुरू करो, पूछो, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, हाँ, हम लोग स्पिरिचुअल एक्शन कोई भी करते हैं, हाँ, तो हमारा माइंड स्पिरिचुअल एक्शन करते टाइम भी मैटरिस्टिक ही रहता है, तो मतलब माइंड तो मैटरिस्टिक उसमें जाता रहता है, चाहे चांट कर रहे हैं, चाहे रीड कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते टाइम एटलीस्ट हमारा माइंड स्पिरिचुअली रहे, तो कोई प्रैक्टिकल टिप उसके लिए? ये समस्या बहुत लोगों के साथ है। नहीं, आपने ठीक प्रश्न पूछा, बहुत सही प्रश्न है, सटीक प्रश्न है, और ये समस्या सबके साथ है, किंतु बोलता कोई नहीं है, छिपाते हैं। मैं सुबह मतलब 2-3 दिन से प्रहलाद चरित्र में यही सब बातें हम लोग, इसकी ही लगभग चर्चा हम लोग कर रहे थे कि मन कृष्ण में कैसे लगे, कैसा लग सकता है। प्रहलाद महाराज जी ने ही थोड़ा स्क्रू लाया ना, तो हाँ, बार बार ना ये हो रहा नीचे की तरफ। करताल भी ठीक है, करताल दे देना इधर। दो है क्या, हो जाएगा बस। हाँ बस, ठीक है ठीक है ठीक, हो गया हो गया हो गया, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। आ जाओ हो गया। हो गया, करताल से हो गई। तो ये प्रश्न जो है सबके मन में, कि हम करते तो सब कुछ है, किंतु हमारा मन जो है कृष्ण में नहीं लगता, कैसे लगेगा? श्री प्रहलाद महाराज जी ने इसका जवाब दिया है। नैषाम मतिस्तावत स्पृशत्तनर्तापगमो यदर्थ महीयशाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। जब तक परम निष्किंचन अकिंचन महाभागवतोत्तम कृष्ण भक्त के चरण रज में जब तक हम पूर्ण रूप से गोता नहीं लगाएंगे,
उनकी कृपा से हम स्नान करेंगे नहीं, यानी उनके विचारों में हम प्रवेश करेंगे नहीं। हमारा ये जो मन जो ये नैषामतिस्तावत् उरुक्रमांग स्पृशति अनर्थापगमो यदर्थ, अनर्थ जो मन विषयों का चिंतन में लगा हुआ है वो कृष्ण में कैसे लगेगा? उन वैष्णवों के कृपा से ही लग सकता है, उसके बिना नहीं लग सकता। ये प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा और ये भागवत की भी शिक्षा। बार बार महाराज भरत जी ने भी श्री रघुगण महाराज जी को ये शिक्षा दिया, विना महत्पाद रजोभिषेकम नैव चंदस जलाग्नि सूर्यै विना महत्पाद रजोभिषेकम। महत्पुरुषों के चरण रज में जब तक उनसे स्नान हमने नहीं किया, हमारी मति स्थिर रूप से कृष्ण में कभी टिक ही नहीं सकती, संभव है ही नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि चरण रज माने क्या? क्या है वो चरण रज? वैसे तो बाहरी रूप से तो है ही, रज तो है ही, हम तो ले लेते हैं, कई बार जबरदस्ती भी लेते हैं, किंतु वास्तव में वो चरण रज क्या है? उनके विचार। वो विचार में स्नान कैसे होगा? निरंतर उनके संग होंगे, उनकी बातों को हम बड़े ध्यान से सुनेंगे, कर्ण पीयूष विप्रुट, कान को कड़े करके मन को एकाग्र करते हुए, मानो हमें करोड़ों की संपत्ति मिल रहा हो, इतने ध्यान से हम उसको सुनते हुए जब हम जो उनके विचारों को निरंतर सुनेंगे, पान सुनते सुनते पान कानों के द्वारा उसका पान हम करेंगे, तो तब जो है उनके विचारों का हम सुनने के बाद उसका मनन मन में उसका चिंतन करेंगे और मन में स्थिर करेंगे। क्या इनका जीवन है, कैसे ये निरंतर कृष्ण के चिंतन में डूबे हैं, इनको कोई परेशानी ही नहीं है। इस प्रकार के ख्याल मन में जब जगेगी तब तो मन में प्रेरणा आएगा, तब तो हम सोचेंगे ओ मुझे भी इसी प्रकार जो है जीवन या मेरा साधन इसी प्रकार मुझे करना चाहिए। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्या जातानुरागो जत चित्त उत्तय असत्य तो रोदति रौति गायति उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य। ये उन निष्किंचन वैष्णवों की स्थिति है कि शरीर की कोई सुध बुद्ध नहीं। हम लोग सुन रहे थे सुबह आज श्री प्रहलाद महाराज जी की, 5 साल के बच्चे हैं किंतु शरीर का कोई सुध बुद्ध नहीं है, कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब सब समय प्रभु के चिंतन में मतलब डूबे हुए। जब तक वैसे व्यक्ति का संग नहीं होगा तो हमारे भीतर भी वैसे स्वभाव कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता। हम किसका संग कर रहे हैं? जो सब समय विषयों के चिंतन में डूबे हुए हैं। कारण यही, हम निरंतर विषयों का संग में लगे हुए हैं और हम यदि भक्तों का भी संग यदि ऐसा लग रहा है किंतु वो भक्त भी अभी पूरा भक्त नहीं है, वो शरीर तो मठ में है या शरीर तो तिलक धारण करके कंठी धारण करके बैठा हुआ है यहाँ पर, किंतु मन कहाँ है? जिनका शरीर मन बुद्धि सब कुछ कृष्ण के पास है, ऐसे व्यक्ति का संग यदि थोड़ा सा भी हमारा हो जाए तब जीवन में परिवर्तन आ सकता है, तब मन जो है कृष्ण में लग सकता। अच्छा, कैसे लगेगा? उनके पास जाने से ही जो वो निरंतर कृष्ण के चिंतन में लीला स्मरण में डूबे हैं, उसका छीटा फूटा चिंगारी यानी चित्त बल की जो चिंगारियां हैं वो पास में जाने से ही वो ट्रांसफर होगा। तब हमें एक प्रकार का मतलब जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो एक प्रकार की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वो एक प्रकार का सुकून कह लो, एक प्रकार की संतुष्टि कह लो, हमको मिलेगा। वो हमें विश्वास दिलाएगा, हाँ ये तो सही चीज है। कि जैसा
जैव धर्म में पहले 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 या दूसरे चैप्टर में कहा ना सन्यासी ठाकुर का, पढ़े आप लोग जैव धर्म? अच्छा, क्या बोला सन्यासी ठाकुर? वैसे बताया कि वैसे बैठे थे एक जगह पे, उन्हें कोई भक्त के दर्शन हुए। हाँ, बहुत अच्छा। कि उन्हें है ना कि बताया कि हृदय में बड़ा आनंद हुआ, पर अपना अपने पद का ऐसे कुछ क्या बताऊं, परम पद की रक्षा करने के लिए उनके पीछे गए नहीं, फिर बाद में बड़े शोक में हर जगह ढूंढते रहे कि कहाँ पे। बहुत अच्छा बच्चा आपका। बहुत बढ़िया। किसने सिखाया? संजय बाबू ने ना? कौन? वो सुंदर उपाय प्रभु जब कर रहे थे ना, तभी वो साथ साथ पढ़ते। तो समझ आ जाता आपको सब? प्रभु जी कथा करते थोड़ा थोड़ा आ जाता। अच्छी बात। तो वहां पर जो सन्यासी थे वो मायावादी थे। मायावादी का मतलब शंकर संप्रदाय के, काशी में। तो उन्होंने सब करके देख लिया, ठीक है, सब करके देख लिया। सब करके भी मन में तृप्ति नहीं हुई। जब तक अच्छा तृप्ति नहीं हुई तो मन में दुख है, मैंने तो सब किया कि संतुष्टि नहीं हो रहा। जब तक इस स्थिति पर नहीं पहुंचेगा आदमी, मानो वही सन्यासी को आप यदि प्रारंभ में कहोगे अरे ये सब क्या बेकार है, नहीं मानेगा। इसलिए भगवान हो या श्री गुरु वैष्णव हो डील दे देते हैं। क्या देखेगा? देखो पहले, जब देख के समझ आ जाएगा कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, तब आपकी बात मान सकता। ये श्री भागवत में जगह जगह की बात है। चित्रकेतु जो बाद में वृत्रासुर बने थे, ये अंगीरा ऋषि वो आए सिखाने के लिए, किंतु मन कहाँ पर है? बच्चा बहुत कुछ कहना चाहा किंतु वो लेने को अभी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है ये बच्चा ही ले लो, किंतु कहा तुम्हारा सुख का भी कारण होगा और तुम्हारे दुख का भी कारण होगा। तो ठीक वैसे ये सन्यासी जो है मायावादी, यदि इनको पहले आप कहते तो नहीं आ सकते। किंतु सब करके मन में मतलब जब दुख हुआ कि कुछ तो मिसिंग है, तब उस समय भगवान ने क्या किया? सामने सुयोग प्रदान। उसके पहले ये बृहद भागवतामृत में भी सनातन गोस्वामी पाद जी ने दिखाया है कि हम कहते हमें संग नहीं मिल रहा है। बात ये नहीं है, हम संग लेने के लिए अभी प्रस्तुत नहीं है। जैसे ही हम एक स्थिति को पहुंच करके ऊब जाते हैं, फिर हम दिल से पुकारते हैं प्रभु कहाँ फंस गया मैं, क्या हो रहा मुझे, तब देखो उसी समय जब हम रेडी हैं, उसी समय ठाकुर जी जो है श्रेष्ठ संग आपके सामने बिना मेहनत के ही सामने, बस वो सिंसियरिटी होनी चाहिए, केवल एक सिंसियरिटी चाहिए बस, वो बिल्कुल सामने ला करके रख देंगे। फिर वो संग से करते करते जब एक मेच्योर लेवल पर पहुंच जाते हैं, फिर एक दूसरा संग मिलेगा जब हम सिंसियर होंगे। ये बृहद भागवतामृत में गोप कुमार के चरित्र में दिखाया। धीरे 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 करके तब जाकर के कृष्ण के बारे में सुना, समझा, साधन किया, प्राप्त किया। क्योंकि मन में वासनाएं हैं, मन में तरह तरह की लालसें हैं। पहले उन सब चीज़ों को तो टाइम तो लग गया है। इंद्र भी बन गए, ब्रह्मा भी बन गए, क्या क्या नहीं बने। तो इसलिए क्या हो गया? भटक गए, बहुत समय लग गया, बहुत समय। ये सब विचार हम जब तक नहीं सुनेंगे, हमें भक्ति क्या है समझ नहीं आ सकता। थोड़ा सा माला करने, थोड़ा तिलक लगाने को ही हम यदि भक्ति समझते हैं, वो हमें कहाँ ले जाएगा कुछ कह नहीं सकते। तो ये सन्यासी ठाकुर जब बैठे थे इस प्रकार की चिंतन से कि कुछ तो मिसिंग है, तब उसी समय सामने क्या हुआ? उन्होंने एक महाभागवतोत्तम भक्त, जो मैंने जैसे कहा अभी, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या, कीर्तन कर रहे हैं लोक का बाह्या, अर्थात कोई सुध बुध नहीं, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या देख रहा है, कोई लज्जा नहीं, शर्म नहीं, कुछ नहीं, बस नृत्य करते हुए श्री नित्यानंद प्रभु का, महाप्रभु का
नाम लेते हुए किसी से कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कभी लुढ़क रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी हा गौरांग कह रहे हैं। तो देख करके तो हुआ ही, किंतु जो उनका सुख, तो मतलब जो उनका सुख जो था, आनंद जो था, उसकी एक चिंगारी भले ही दूर में है, किंतु उसका जो एक चिंगारी जो है वो मतलब ट्रांसफर हो गया। को लगा ये इतने सुखी हैं और मैं परमहंस कुल चूड़ामणि होने के बावजूद मुझे तो, मैं आज तक तो इतना मतलब खुशी से मैं झूमा नहीं कभी, मैं नाचा नहीं कभी, ऐसी चीज। तो तब मन में क्या हुआ, एक ग्रीड जमा, लोभ जग गया, मुझे तो यही चीज चाहिए। किंतु वो व्यक्ति तो तब तक गायब हो गए, है ना। फिर उनको ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए, फिर करते करते फिर बाद में पता चला नवद्वीप में होंगे, तो नवद्वीप में भी कई जगह ढूंढा, बड़ी मेहनत हुआ, तो लास्ट में जाकर के वो मायापुर में पहुंचे। तो वहाँ पर ये श्री रघुनाथ दास बाबा जी मिले, तो वहाँ पर उनको तो एक फाइनल डेस्टिनेशन उनको मिल गया। जब तक इस प्रकार की नहीं होती है, हमारा मन कृष्ण में नहीं लग सकता है। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो सर्व सिद्धि क्या है? क्या है वो सर्व सिद्धि? विषय का समाप्त। और मन की जो है स्वाभाविक रूप से ही जो है मन जो है श्री कृष्ण में जाना स्वाभाविक। अभी क्या स्थिति है? सुबह उठो, अच्छा 16 माला हुआ कि नहीं हुआ कि क्या है, फिर चीटिंग हो जाता, उसमें भी दर 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 करके ऐसा ऐसा करके हो गया फटाक से हो गया। जैसा बच्चे लोग होते हैं स्कूल जाना है, एग्जाम ऐसे है करके माँ हो गया, 2 मिनट में सब हो गया। तो क्या करें, तो रुचि है ही नहीं। चलो धीरे धीरे करके संस्कार भी दिया, ये भी दिया, वो भी दिया, प्रसाद, अच्छा एकादशी के दिन बहुत फिर मनाना पड़ता है, फ्रेंच फ्राइज हमको आपको देंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कर करके तो ये सब क्या है, अभी रुचि, अभी कोई टेस्ट कुछ भी नहीं। किंतु जिस समय जो है कि स्वाभाविक रूप से ही हमारी मति जो है नाम करने की, सेवा करने की, कथा सुनने की, पारमार्थिक राज्य का जो प्रारंभ है और सबसे मुख्य मेन पार्ट है कान दे करके कथा सुनना। किंतु वो कथा भी फिर कहाँ से सुनना? प्रॉपर सोर्स से सुनना, सब जगह नहीं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये जो कान जो है ना, यही परमार्थिक जीवन का रास्ता है। इसलिए इस कान को सुरक्षित रखना है। जहां तहां यहां वहां कान दे दिए सुनने के लिए, भटक जाओगे। तो इसलिए ये जो कान है सब जगह नहीं देना, सबको भी नहीं देना और सब जगह भी नहीं देना। केवल और केवल प्रॉपर प्रामाणिक और श्रेष्ठ भक्तों को ही कान देना है। यदि हमने ठीक जगह कान दिया, हमारा पारमार्थिक जीवन सुरक्षित हो गया और पक्का भी हो गया। तो इसलिए जो सुनता है, ध्यान दे के सुनता है, विश्वास के साथ सुनता, वही परमार्थ में सीरियस है। जो नहीं सुनता है या सुनने के बाद मन में रखता नहीं है, वो सीरियस नहीं, और वो ज्यादा दिन गाड़ी चलेगी नहीं। मतलब शरीर चल रहा है अभी, किंतु मन अभी ज्यादा देर साथ देगा नहीं। ठीक है, इसलिए भागवतम में जगह जगह ये बातें हैं, स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य विश्वक्सेन कथासुय न उत्पादयेत यदि रतिम श्रमयेव हि केवल। विश्वक्सेन कथासुय, भगवान की कथा में यदि रति, जो सुबह हम सुन रहे थे रति की जो डेफिनेशन, जो ये जो रति है, जो आपने जो पूछा प्रश्न, तो सुबह हम लोग श्री प्रहलाद महाराज जी के चरित्र में नारद ऋषि कह रहे हैं
कि वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। प्रहलाद महाराज जी की क्या स्थिति है, हमारी क्या स्थिति है, हम कृष्ण के पास भी भले बैठे तो हमारा चित्तवृत्ति जा रहा विषयों की तरफ, और दूसरी तरफ प्रहलाद महाराज जी की क्या स्थिति है कि राक्षसों के बीच में, नास्तिकों के बीच में गाली गलौज हो रही है तो भी कहां जा रहा चित्तवृत्ति, नैसर्गिकी माने स्वाभाविक रूप से कृष्ण में जा भी रहा है और समाधिस्थ भी है। समाधि में कोई लेना देना ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए हम लोग सुबह सुन रहे थे ये रति क्या, ये रति है मुक्त अवस्था की स्थिति जिसमें विषय का गंध हमें स्पर्श करता नहीं। उस समय 24 घंटा कृष्ण का ही स्मरण हमारा होता रहता है। ये तो साधन भजन के द्वारा, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला महाभागवतों की संग के प्रभाव से, साधन के द्वारा, उनकी कृपा से ऐसी स्थिति की प्राप्ति हमें हो सकती है। तो इसलिए गुरु वैष्णवों की सेवा करनी होगी, तब जाकर के जो है सेवा की वृत्ति से फिर धीरे 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 जो है भगवान में मन लगेगा। अर्थात संग में कथा सुनना, उसका मनन करना, और उसका जो प्रैक्टिकल है ये हो गया थियोरेटिकल, और उसका प्रैक्टिकल क्या है सेवा। यानी हम सुनते हैं भक्ति करो भक्ति, अरे भक्ति करो करो कहना क्या होता, भक्ति सेवा करो मतलब सेवा करोगे वो करना ही तो भक्ति है, सेवा ही भक्ति है। भक्ति माने ही भज धातु तु सेवायाम परिकीर्तिता। ये भक्ति का जो मूल जो शब्द है ये भज नामक धातु से बना हुआ ये भक्ति शब्द है। भज धातु के साथ ये इक्त नामक प्रत्यय है, उसको लगाने से हो जाता भज इक्त भक्ति। ठीक है, तो तब जो है ये भज धातु का तात्पर्य क्या है, ये गरुड़ पुराण में फिर बोला गया भज धातु तु सेवायाम परिकीर्तिता। भज धातु का तात्पर्य सेवा। तो इसीलिए एक हो गया थियोरेटिकल, हमने सुना, किंतु सुनने से भी नहीं होगा, साथ साथ उसका प्रैक्टिकल करनी होगी, यानी सेवा करनी। तभी जो गीता में कृष्ण ने जो बोला तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, ये दोनों चीज प्रणिपात हो गया कि स्वीकार, मतलब दूसरे की बात सुनने की एक परिपक्वता, नहीं तो मैं क्यों सुनूं आपकी बात। ठीक है, और सुनने के बाद क्या प्रश्न नहीं है, परिप्रश्न माने जो सुना उसका विचार किया, मनन किया, चिंतन किया, समझ नहीं आ रहा फिर पूछा, ये नहीं कि बार बार अच्छा ये दोनों हो गया तो ये हो गया थियोरेटिकल चीजें। अब आया क्या प्रैक्टिकल, क्या सेवया। थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों साथ में नहीं होगा तो भक्ति तो इसलिए क्या है कि सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, जो नहीं समझ आया प्रश्न करके पूछेंगे, और साथ साथ क्या होगा श्री गुरु वैष्णवों की दिन रात सेवा में लगे रहे। यही भक्ति करते 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 कृष्ण में मन, श्री गुरु की कृपा से, वैष्णवों की विशेष कृपा से मन लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, जरूर लगेगा। उसके लिए हम यदि प्रयत्नशील हैं तो क्यों नहीं लगेगा। मानो श्री गुरु वैष्णवों से हमने सुना श्री कृष्ण का जो रूप माधुर्य है, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासम कनक कपिशम वैजयंतीम जमालम रंद्रान वेणुरदसुदयो पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति। हमने सुना श्री कृष्ण का क्या सुंदर रूप है, मनोहर। जब शाम को कृष्ण लौटते हैं कैसे पीतांबर धारण है, कमर में करधनी है, और मुकुट में मोर मुकुट है, और कानों में क्या कर्णयो कर्णिकारम, ये कनेर के फूल हैं, और सुंदर से वैजयंतीम च मालाम, कितना सुंदर वैजयंती माला है, और पीतांबर वस्त्र है, और
अधरों में वेणु धारण करते हुए पूरयन गोप वृंद, ऐसी मधुर शब्द की पूरे गोप जाति को परिपूर्ण कर देते हैं। ये दृश्य देख के सारे जो ब्रजवासी हैं पागल हो जाते हैं, सुध-बुध नहीं रहता उनका, अपना सारा काम छोड़ के दौड़े दौड़े सब आते हैं श्री कृष्ण को। शाम के समय जब लौटते हैं, सामने सामने आगे की तरफ बछड़े जा रहे हैं, और उन बछड़ों के खुर से जो धूल है सब जगह दूसरित है सब कुछ, और श्री कृष्ण के सांवले रंग पे ऐसे छोटे छोटे ऐसा जो सजाते हैं ना, जैसे बच्चों का ऐसा डॉट 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 जो शाइनिंग वाला होता है, तो श्री कृष्ण के सांवले शरीर में ये जो धूल है ये बिल्कुल वैसा ही सजाया हुआ है। इतना सुंदर उनका रूप, पीछे पीछे ग्वाल, और सारे जो ग्वाल बाल हैं सब कृष्ण के मधुर मधुर लीलाओं का कीर्तन कर रहे हैं। कृष्ण ने आज धेनुकासुर को मारा, आज उन्होंने ऐसा किया, अरे बाबा ऐसा आया था, ऐसा किया, ऐसे मधुर मधुर शब्दों में गा रहे हैं। और इधर श्री यशोदा मैया, नंद बाबा सब आरती लेकर के सब खड़ी हैं और श्री कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं, और देख रहे हैं कहाँ कहाँ चोट लगा, कहाँ क्या मतलब है ना, क्या क्या मतलब क्रोच लग गई। ये सब जब तक सुनेंगे नहीं मन कैसे लगेगा, ये भी सुनना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद नाम करते करते इन्हीं चीजों को मन में धारण करना, यानी मन को खींच के बार बार इनमें लगाना पड़ेगा, तब तो लगेगा। अभ्यास योगेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यताम्। विषयों से वैराग्य तो है ही छोड़ना, किंतु पकड़ना क्या है? अभ्यासेन, यानी मन को क्या है बार बार खींच के उसी में लगाना। यथा यथा मन निश्चरति चंचलम अस्थिरम तथा तथा आत्मन्नेव वशम नयेत्। ये भी गीता का ही श्लोक है, उसके बाद ही ये जैसे जैसे मन जो है इधर उधर भटकता है तो क्या करना है, उसको खींच के नहीं श्री कृष्ण के चरणों में ही लगाना। तो इस प्रकार से जब हम सुनते हैं प्रॉपर सोर्स से, ऐसे प्रेमी भक्तों से, मन तो स्वाभाविक जाएगा, किंतु ज्यादा संग नहीं किया तो बार बार मन विषयों पे जाएगा। तो मन को उस समय समझाना है, समझा करके क्या है बार बार उसको खींच के प्रैक्टिस करना है, कृष्ण में लगाना। ऐसे लगाते 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 स्वाभाविक लगेगा। जैसा बच्चे हैं अभी 10th में, पढ़ने की रुचि नहीं, 12th तक भी नहीं होता कईयों को, नहीं तो कईयों को 10th के बाद हो ही जाता है। किंतु जब तक रुचि नहीं है तो क्या करना पड़ता है, कान पकड़ पकड़ के पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अच्छा फ़ोन मत देखो, टीवी मत देखो, ये मत, पबजी मत खेलो, वो मत खेलो, ऐसा मत करो, वो मत करो। किंतु जिस समय जब 10th में मतलब ठीक से हुआ नहीं और सारे बच्चे बढ़िया बढ़िया मार्क्स लाया, फ्रेंड सब लाया और एकदम मुंह मतलब नीचे हो गया, फिर समझ आ गया कि पढ़ना है, फिर उस बच्चे को बोलने की भी जरूरत नहीं, फिर वो टीवी वीवी सब फेंक देगा सब, और बिल्कुल दिन रात नहीं मार्क्स लाना मुझे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले को समझ नहीं है कि पढ़ना क्यों है, और दूसरे को क्या हो गया अब समझ आ गया कि तो ठीक है। वैसे हम लोगों की भी स्थिति क्या है, पहले अभी समझ नहीं है कि कृष्ण के चरणों में कितना रस है, आनंद है, कृष्ण की सेवा में कितना है, हमें अभी समझ नहीं है। इसलिए हम क्या मन मार के जबरदस्ती लगा रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, कभी हो रहा कभी नहीं हो रहा, कभी नींद आ गया, कभी मन कह रहा छोड़ो आज क्या करना बेकार का। किंतु जिस समय ऐसे संग के प्रभाव से हमें थोड़ा थोड़ा वो रस हमको मिलने लग जाता है, फिर मन क्या है दौड़ता है, मंगल आरती जाना है, वहाँ अब परिक्रमा हो रहा जाना, साधु संग है जाना है। तो ये जो स्वाभाविक नाम करने की स्वाभाविक वृत्ति, 16 क्या 16 से 32 भी हो गया, टाइम मिला ज़्यादा से ज़्यादा, यही ये स्वाभाविक जो वृत्ति ये ऐसे भक्तों के संग से ही हमको प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए संग की प्रार्थना करो, संग से ही सब कुछ है।
ठीक है, संग में ही सब कुछ है, संग ही सब कुछ है, संग से ही हमें भक्ति, संग से ही हमें कृष्ण की प्राप्ति, संग से ही सब कुछ। तो इसलिए गुरुदेव भी बार बार इस बात को कहते थे कि शुद्ध भक्तों के संग की प्रार्थना करो, व्रजरस रसिक भक्तों की संग की प्रार्थना करो। ऐसे संगति में ही मन जो है बिल्कुल कृष्ण में रम सकता है। नहीं तो विशेष करके इस कलिकाल में, विशेष करके जब से फोन आया है, संभव है ही नहीं। मुश्किल से 2 सेकंड लग गया तो लग गया बस। और वो भी कैसे, कृपा करके भगवान ने यदि कष्ट दे दिया जीवन में, तब एक पुकार आता है, तब एक चिंतन होता, तब होता है, नहीं तो नहीं होता। सब जब जीवन में सब ठीक जा रहा है, फिर भगवान याद नहीं आते। सब ठीक ही है तो फिर क्यों आपको याद करें फिर उसके बाद, है ना। अच्छा, और प्रश्न? प्रभु जी, अभी ना जैसे आपने बोला वैष्णव सेवा, तो हम लोग कैसे डेली वैष्णव सेवा हम कैसे कर सकते हैं? डेली वैष्णव सेवा जो है, ठाकुर जी सेवा किया जा सकता है, ठीक है। ठाकुर जी की सेवा करो और ठाकुर जी के साथ साथ श्री गुरु की सेवा की मन ही मन भावना करो, ठीक है। और जब कभी वैष्णवों का सुयोग मिला तब वैष्णवों की भी सेवा की। जैसा आपने अभी प्रसाद फिर बनाया, खिलाया, किंतु वास्तव में सेवा क्या है ये भी हमको जानना। उन वैष्णवों की बात को सुनना और उनकी बात को मानना, यही वास्तव में सेवा है। कि जैसा आपके ही मानो बच्चे हैं और आपको ला देते हैं, दे देते हैं करके, तो आपकी बात नहीं मानते हैं, तो फिर आपको मानना हुआ नहीं। किंतु मानो दूसरा बच्चा है, यदि वो ज़्यादा करता तो नहीं है किंतु वो आपकी बात को मान लेता है, वो ज़्यादा मन को अनुकूल और सारी कृपा भी उस बच्चे को ही जाता है कि नहीं। तो ठीक है, वैसे ऐसे गुरु वैष्णव जो हैं उन्हें तो खाने पीने इसके लिए तो नहीं आते हैं, ठीक है, वो तो कुछ देने आते हैं। यदि उस देने हुए मतलब जो दे रहे, यदि उस वस्तु को यदि सीरियस होकर के ग्रहण किया, वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, अब लाख खिला के प्रणामियां दे करके उनको संतुष्ट नहीं कर सकते। जैसा श्री भागवत महापुराण में 11वें स्कंद में दिखाया, एक बहुत बड़े राजा हुए नेमी। ये जनक राजा के ही पूर्वज थे, प्रारंभ स्टार्टिंग उनसे ही हुआ। तो वे बहुत बड़े कर्मकांडी जैसे यज्ञों का समारोह कर रहे थे। वहाँ पर देखा एक तेज का पुंज, प्रकाश सा ऊपर से उतर रहा नीचे। तो सबने सोचा पता नहीं क्या है, और जैसे जैसे पास में पहुंचे तो देखा ये तो नव योगेंद्र हैं, जो श्री ऋषभ, भगवान श्री ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से ये 9 पुत्र हैं। और जैसे ही वो नव योगेंद्र तेज, इतना प्रकाशमान तेज को देखा, नाजा नेमी ने समझे कोई साधारण है ही नहीं है। तुरंत उन्होंने सबसे कहा कि बस बंद करो दोस्तों, ठीक है, इसका फल हमें मिल गया। क्या? साधु संग। तो जैसे ही वो पहुंचे, सारा काम अपना छोड़ दिया। पहले उनको स्वागत किया शब्दों से, फिर उनको बिठाया। ये सब है साधु सेवा में, ये सब चीज़ें, शब्दों से स्वागत, फिर बैठने के लिए आसन देना, फिर पाद प्रक्षालन, क्योंकि पहले पैदल चल के आते थे जैसा है ना चीज़ें, तो क्या करते थे, पाद प्रक्षालन यानी उसको साफ करते थे। फिर उसके बाद हाथ धुलवाते थे, पाद्य अर्घ्य।
फिर कुछ पीने को देते थे, आचमनी है नहीं, और फिर उसके बाद थोड़ा चामर पंखा जुला दिया। इस प्रकार सब हो गया, ठंडक हो गई, बैठ गए, शांत हो गए। फिर राजा नेमी ने क्या किया, स्वयं अपने राज सिंहासन में सबको बिठाया और स्वयं कहाँ रहे, चरणों में नीचे जाके बैठ गए। और बैठ करके क्या कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। हमने सुना है कि ये मानव देह मिलना बहुत कठिन है, ये मिलता नहीं, और उस पर भी भारतवर्ष में, और उस पर भी मतलब बिल्कुल ठीक ठाक रीति से जन्म लेना और संस्कार में जन्म लेना, ये बहुत ही दुर्लभ बात है। फिर भी हमको मिल गया है, तो इसीलिए ये लगता नहीं कि ये दुर्लभ है। तो वास्तव में फिर दुर्लभ क्या है, वैकुंठ प्रिय दर्शन। भगवान के जो पार्षद हैं, जो वहां से यहां उतरते हैं नीचे, केवल हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों का, महापुरुषों का संग जो है इस संसार में, इससे बढ़ के दुर्लभ और कुछ है ही नहीं। जब हमें ये बात समझ आ जाता है, फिर राजा नेमी की तरह हम अपने 100 कामों को छोड़ के उसके पीछे पीछे पागलों की तरह दौड़ेंगे। तो राजा नेमी ने क्या किया, अपना सारा काम छोड़ के चरणों में बैठ गए, और बैठ के उन नौ योगेंद्रों से 9 प्रश्न किया। ठीक है, इतना सुंदर प्रसंग है वो 11वें स्कंद में, 3, 4, 5वें, मतलब 3 चैप्टरों में 3-4 मतलब 4 चैप्टरों में 9 लोगों से 9 प्रश्न किया। इसी को निमि नवयोगेंद्र संवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इतने प्रसन्न हुए वो नवयोगेंद्र की राजा नेमी जो हैं, क्या किया, वहां बैठ के श्रवण किया, बात को माना। यही साधु सेवा। मतलब बाकी सब तो है ही बाकी सब तो है ही, कि तो असली चीज क्या है, बात मानना। ठीक है, बात सुनना और बात को मानना। ठीक है, तो इसीलिए जब जब सुयोग मिलता है तब तब इसका, देखो ये रोज नहीं मिलेगा, कि तो जब भी मिलता है इसका लाभ हमें उठा लेना चाहिए। तो इसलिए महाप्रभु ने गृहस्थों के लिए सिंपल सी चीज बताई है, नाम संकीर्तन। महाप्रभु से गृहस्थ लोगों ने पूछा, श्रीखंड के जो निवासी हैं प्रत्येक साल वो पूछते थे। तो किसी साल उन्होंने पूछा, हम लोग तो गृहस्थ हैं, क्या करें, भगवान की प्राप्ति कैसे हो। तो महाप्रभु ने कहा, आप लोगों के लिए बहुत सहज, 2 ही चीज है, क्या, नाम संकीर्तन आर वैष्णव सेवन, 2 ही करो श्री पावे श्री कृष्ण चरण। 2 ही चीज है, क्या, निरंतर नाम संकीर्तन करो, और जब साधु सेवा का सुयोग मिला तब साधु सेवन करो, यानी उनसे सुनो। जो उनसे सुना उसी का नाम कीर्तन करते 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 नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, तो फिर भगवान फिर एक संग भेजेंगे। ऐसे करते 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 जो है मन जो है श्री कृष्ण में लग जाएगा, और शीघ्र पावे, बहुत ही शीघ्र ही हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वैष्णव सेवन जो है सहज तो है, किंतु मुश्किल भी है। क्यों, बात मानना बहुत मुश्किल है, बात मानना बहुत मुश्किल है। फिर भी हमें सिंसियर होकर कम से कम हमको प्रयास करना चाहिए। भले ही हम सारी बात नहीं मान पा रहे, फिर भी हम यदि सिंसियर होकर के हमने यदि प्रयास भी किया, बस केवल वो प्रयास को देखते। ये संसार की तरह नहीं है, यहां आपका प्रयास कोई नहीं देखता है, यहां आपका रिजल्ट देखी जाती है। किंतु परमार्थ में क्या है कि रिजल्ट नहीं है, केवल आपकी सिंसियरिटी देखी जाए, आपका प्रयास देखा जाता है कि आपने प्रयास किया, बस यही बहुत बहुत है, यही चीज है ना। तो इसलिए साधु सेवन जो है वास्तव में उनकी बात सुनना, उनकी बात मानना।
और आप कुछ पूछो। तो जी साधु संग, जैसे अपन कह रहे हैं साधु संग और श्रवण भी कर रहे हैं, हाँ। ये हो भी रहा है, हाँ। लेकिन एक थोड़ा ऐसा भी लगता है कि आप कि एक समय के साथ में कि शायद ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्रोग्रेस जैसा भी कह रहे हैं वो होगा, हाँ। प्रोग्रेस का कैसे पता चलेगा? जैसे हमको कुछ एक वो होना चाहिए कि जैसे कई बार होता है मापदंड, मापदंड, इसका मापदंड है, इसका मापदंड है, ठीक है। और इसी निमि नवयुगेंद्र संवाद में नवयुगेंद्र ने ये मापदंड दिया है। कैसे हमें पता चले कि हम भक्ति में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? कौन बता सकता है? एनी गैस? नहीं है? संसार के प्रति रुझान कम हो जाएगा। हैं? संसार के प्रति ये तो रुझान मायावादियों का भी होता है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वो सुनी थी प्रभु जी से, अच्छा उन प्रभुपाद जी के पास उनके सारे शिष्य आते हैं अच्छा, और वो सब सारे इकट्ठे होकर मतलब टाइम ठीक है ना ये? हाँ। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर आपस में विचार करते कि आज हम प्रभुपाद जी से पूछेंगे। सब अभी बोल रहे थे कि मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतनी भक्ति करता हूँ। तो फिर उसी वक्त प्रभुपाद जी उस मठ में आए। वो मठ में पता नहीं कौन सा था, शायद बंगाल में कुछ था। तो फिर वो बोले कि चलो गुरु जी आए हैं, प्रभुपाद जी आए, उनके पास जाके हम सब पूछते हैं। तो सब प्रभुपाद जी के पास गए तो सबने बोला देखो मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, आप बताओ किसकी सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, मतलब कौन सबसे श्रेष्ठ अधिक भक्ति करता है और कौन सबसे श्रेष्ठ है भक्ति है। तो प्रभुपाद जी ने फिर एक स्टेटमेंट बोला था कि जिसकी वैष्णवों में जितनी प्रीति है उसका उतनी भक्ति माना जाएगा। चलो ये तो प्रभु जी मैं बताऊं, अच्छा, हाँ बताइए। जो जितना ये सोचता है कि मैं सबसे पीछे हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, हाँ। जिसमें दीनता भाव ज्यादा होता है, इसका मतलब वो ग्रो कर रहा है। ये सब जो ठीक बात है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये सब क्या है कि गौण लक्षण है, सेकेंडरी ये सब है, किंतु मेन क्या है ये निमि नवयुगेंद्र संवाद में बताया है। भक्ति परेशान भवो विरक्तिर अन्यत्र चैषत्रीक एक काल प्रपद्यमानस्य यथाश्नसः तुष्टि पुष्टि क्षुदपायो अनुभासो। उदाहरण दिया, जैसा हम खाते हैं, पेट अभी खाली है ना, और हमने जितने परिमाण में हमने मुंह में डाला, साथ ही साथ तीन चीज साथ साथ होगा, तुष्टि पुष्टि क्षुद अपायो। पहले क्या होगा? तुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी पेट थोड़ा थोड़ा अभी हो। अच्छा, फिर साथ साथ पुष्टि भी होगी, ताकत आने लगेगा। और जितने परिमाण में संतुष्टि हुई यानी पेट भरा और ताकत आया, उतने परिमाण में क्या होगा? भूख। ठीक वैसे ही भक्ति परेशान भवो विरक्ति, तीनों चीज एकत्र, तीनों एक साथ होगा। अर्थात जितने परिमाण में आपने भक्ति किया, साथ साथ क्या होगा? परेशान भव, यानी कृष्ण की अनुभूति साथ साथ होगी। और जितने परिमाण में कृष्ण की अनुभूति हुई उतना सेटिस्फैक्शन हुआ, तो साथ साथ क्या हो गया? विरक्तिर अन्यत्र, संसार के प्रति वैराग्य स्वाभाविक रूप से ही हो गया। यही मापदंड है, कितने परिमाण में कृष्ण में लगा और कितने परिमाण में विषयों से मन हट गया, यही इसका मापदंड। हाँ, जब ये हुआ तो वैष्णवों की सेवा में भी मन लगेगा, जो प्रभुपाद जी ने बोला। और जब ये हुआ तब दीदी ने जैसे फिर बोला कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल दीनता, ये सब लक्षण साथ साथ आ जाएगा। किंतु ये मुख्य नहीं है, मुख्य तो ये वाला है। और ये सब जो है पीछे से जुड़ जाएंगे, किसी में कम किसी में ज्यादा, किंतु सब में ये पीछे पीछे से जुड़ जाएंगे। तो इसलिए मापदंड क्या है? कितने परिमाण में ये जो मन जो है श्री कृष्ण में जाकर के समर्पित है। जितना समर्पित है उतना वो शांत होगा,
विषयों से कोई लेना देना नहीं होगा, मन में कोई स्पृहा नहीं रहेगी, हम ये करेंगे तो वो करेंगे, तो वैसे करेंगे तो वो होगा, तो ऐसा होगा। मन शांत है और पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर है। कृष्ण जैसा चाहेंगे, गुरुदेव जैसा चाहेंगे। हाँ, मैं प्रयास करूंगा सही, किंतु उनकी इच्छा होगी तो ही। तो पूर्ण रूप से कृष्ण के मर्जी पर निर्भर है और कभी ये नहीं सोचता मैं कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा, मैं सुना दूंगा। तो ये सब उसके मतलब बाहरी जो लक्षणें हैं। तो वास्तव लक्षण ये है कि जो मन जो है, चित्त जो है, वो पूर्ण रूप से कृष्ण के चरणों में रम गया है और विषय उसको फिर उस समय कड़वी लग रही है। यही इसका लक्षण है। यानी जितना हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये भी एक है। ये इसी की ही व्याख्या समझो। सवै पुंसाम परो धर्म दोक्षजे, फिर उसके बाद हाँ, फिर लास्ट में क्या बोला? ययात्मा संप्रसीदति। क्या तात्पर्य इसका? यदि भक्ति किया, कौन सी भक्ति? अहेतुकी, यानी कामना रहित निष्काम भाव से, और अप्रतिहता, बिना किसी रुकावट के, तो क्या मिलेगा? ययात्मा, आत्मा जो है संप्रसीदति, यानी आत्म संतुष्टि प्राप्त होगी। जैसे ही वो संतुष्टि प्राप्त हुआ, अपने आप मन जो है शांत हो जाएगा। यही हमारे शास्त्रों की पद्धति है, इसके अलावा और कोई पद्धति नहीं। मन कंट्रोल तब तक हो ही नहीं सकता जब तक आत्म संतुष्टि नहीं मिलेगी, तब तक मन काबू में नहीं हो सकता। भगवद गीता में भी तो हाँ, ये था नहीं, वो तो नहीं, वो तो दूसरे चैप्टर में ही है। सुबह आज ये लोग कर रहे थे बात, मैं सोचा मैं बोलूंगा। प्रसाद पाना भी प्रसाद को लेके कुछ चल रही थी बातें, तो कृष्ण ने सेकंड चैप्टर में बोला है ना, प्रसादे सर्व दुक्का नाम हानिरस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसो ही आशु अवतिष्ठते। तो वहां पर देखो, आप खोलो ना, देखो ना, सारी चीजें सामने ही हैं, किंतु दिख नहीं रहा है, दिखाई नहीं देता है चीज। प्रसादे सर्व दुक्का नाम हानि उपजायते। जैसे ही ये परम दृष्टवा निवर्तते विषया विनिवर्तन, ये दूसरे चैप्टर में सारा श्लोक, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जैसे ही कृष्ण की थोड़ी सी उपलब्धि होगी, ये लपलपाहट जो है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ये अपने आप खत्म हो जाए। और जैसे ही खत्म हुआ, प्रसादे सर्व दुक्का नाम, ये जो आत्म प्रसन्नता जो है, आत्म संतुष्टि जो है, हानिर यस्य उपजायते, जो भी बाधाएं हैं सब खत्म हो जाए। फिर उसके बाद क्या है? 14 के आनंद दे की, सब जगह उसको क्या है, सब बढ़िया लगेगा। जैसा सुबह सुबह जाग के 3 बजे 4 बजे जाग के नाम करो, फिर मंगलारती करो, तो फिर देखना सब जगह आपको एक चमत्कार जैसी माहौल प्रतीत होगी। पेड़ में भी एक रस मिल रहा है, दृश्य में भी रस मिल रहे हैं। क्यों? संतुष्टि वाली चीज। अब उसी को हम यदि बढ़ाएंगे तो फिर संसार में मन लगेगा? लग ही नहीं सकता। तो इसीलिए इसको हमें बढ़ाना है। किंतु ये कैसे बढ़ेगी? सुनते 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 रुक्मिणी जी पागल हो गई। सुना है? नहीं सुना? रुक्मिणी जी जो हैं, कृष्ण को कभी देखी? देखा? क्यों नहीं देखा? हैं? देखा उसने? नहीं। क्यों? खानों के माध्यम से सुना।
वो तो बच्ची थी, कहाँ से देखती? वो तो यहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, विदर्भ में, नागपुर साइड में, और कृष्णा कहाँ है? मथुरा में। तो कहाँ से देखेंगे? फिर भी प्रेम कैसे हो गया भाई? तब तो ये फोन वोन तो था नहीं, कुछ था नहीं, कोई भी चीज थी नहीं। ना ही जूम और वीडियो कॉल तो थे नहीं कुछ। नारद ऋषि बीच बीच में वो आते रहते थे, और ये बच्ची थी, वो जाती थी, सेवा करती थी उनकी, और वो बड़े प्रसन्न होकर के मीठे मीठे शब्दों में सुनाते थे। एक छोटा सा बच्चा है, बड़ा नटखट है, सांवला सा है, मोर मुकुट है, पता ही नहीं। वो बस वो सुनते सुनते फिर क्या हो गया, सखियों से, अपने सहेलियों से वही चर्चा सुना, सुन के क्या किया, कीर्तन किया, श्रवणम, फिर कीर्तनम किया, करते 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 कैसे हो गई हालत, स्मरणम। कृष्ण तो नस नस में हो गए। अब दिन रात वही कीर्तन, वही चीज, वही बातें सुनते, कीर्तन करते करते और स्मरण करते करते कब प्रेम हो गया उसको पता ही नहीं चला। और इतना हो गया कि मानो मत देखा ही नहीं व्यक्ति को, फिर भी इतना प्रेम हो गया कि चिट्ठी लिख के भेज रही है कि शादी करूंगी तो आपके साथ ही, यदि नहीं मानोगे आप, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, और यदि मुझे 100 जन्म भी लग जाए तो भी आपसे ही मैं शादी करूंगी। वो भी कैसे, रोते रोते। तो कृष्ण तो पत्र नहीं पढ़ा, केवल उस पत्र की स्थिति को देख के ही समझ गए बड़ा प्रेमी व्यक्ति है कोई। तो कृष्ण से रहा नहीं गया, तो कृष्ण दौड़े आए। कृष्ण के मन में ये बृहद भागवतामृत के विचार, सनातन गोस्वामी जो हमारे जो गोस्वामियों का विचार है, क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण को शादी करने का मन नहीं था। लोग कहते हैं ना 16,000 शादी करके मौज मस्ती में, कोई मौज मस्ती नहीं था। रुक्मिणी ने ऐसी एक धमकी देख करके चिट्ठी लिखा तो क्या करेंगे बेचारे। फिर उसके बाद जो है सत्राजित ने दोषारोपण लगाया कि समंतक मणि लेगी, उसको छुड़ाने के लिए जांबवान के पास गए। जांबवान ने कहा मैं वैसा मणि नहीं देता, साथ में बेटी लेनी होगी, तो लिया। फिर वापस आए, सत्राजित ने कहा मैंने दोष कर दिया, सत्यभामा को भी आपको लेना पड़ेगा, मैंने दोष किया। ऐसे ही एक एक करके जबरदस्ती लाद दिए गई। तो भी कृष्ण को संतुष्टि हुई नहीं। क्यों? जो व्रज के, जो व्रजवासियों के, विशेष करके गोपियों के, विशेष करके राधा जी की जो सेवा भावना है वो इनमें वैसा मतलब है, पूरा है, किंतु वैसा वाला नहीं है कि जवाब पे जवाब दे। और दूसरी तरफ वेणुवादन किया तो तुरंत अपने सारे काम को छोड़ के दौड़े हुए आए। रोटी बेल रहे हैं वैसे ही रख दिया और दौड़े दौड़े आए। विन्यस्त वेशा, कभी यहाँ के जो कान की चीज को नाक में पहन ली, नाक के जो बेसर को कान में पहन ली, नूपुर को यहाँ गले में, यहाँ की चीज पैरों में, पता ही नहीं चला। और कृष्ण ने बुलाया तो तुरंत दौड़े आए। ये कृष्ण, ये इन्होंने देखा कि इन द्वारका की रमणियों में ऐसा नहीं, थोड़ा रुक्मिणी को छेड़ के देखा। बड़ा सुंदर प्रसंग है भागवतम में ये सब चीजें, किंतु पढ़ने से भी नहीं होगा। जब तक वो सुनेंगे, ऐसे रसिक भक्तों से सुनेंगे नहीं, सुनने के बाद पढ़ो। पढ़ने की भी क्या रीति है? जैसा हम स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, क्या करते हैं? पहले सुनते हैं ना, पहले सुनने के बाद फिर पढ़ते हैं ना। मानो यदि पहले हमने पढ़ भी लिया तो वैसा प्रभाव नहीं होता है। तो ठीक इसमें भी क्या है, वैसे रसिक भक्तों से सुनेंगे फिर पढ़ेंगे तो देखना फिर चमत्कार क्या है। तो क्या है कि श्री कृष्ण जो है रुक्मिणी को थोड़ा सा छेड़ा, कहा कि कहाँ तो खाली कलूटे से तुमने शादी की, बिल्कुल गरीब, और इसके भक्त भी सारे मतलब बिल्कुल हैं, कोई किसी के पास कुछ है ही नहीं। अरे तू चाहती तो तेरे ऊपर तो शिशुपाल फिदा था, वो ये थे, कितना बड़ा राजा है वो, ऐसा खूब छेड़ा कि तो रुक्मिणी कैसी है, जवाब देती नहीं है। वो भीतर ही भीतर घुट रही है।
घुटते घुटते बेहोश होके गिर, मतलब जब एक लेवल सहन नहीं हो पाया, क्योंकि वो जवाब तो दे नहीं पा रही है, तो वो घुट के बेहोश होके गिर गई। तो कृष्ण तो फिर मतलब दुखी हो गई, तो पानी लाया, होश में लाया, फिर कहा अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वो तो रुक्मिणी फिर कहने लगी, बड़ी स्तुति है वहाँ पर कि पति हो तो वास्तव में आप ही हो पति हैं। यशुपाल क्या है कि मांस है ना, अष्टधातुओं से बना हुआ पति थोड़ी ना पति है। वो तो वास्तव में स्वयं को ही पालन कर नहीं पाता है, वास्तव में वो पति नहीं है, वास्तव में आप ही जो हैं सबके पति हैं। तो बड़ी सुंदर बातें तो कही, किंतु कृष्ण ने मन ही मन विचार किया कि इसके साथ मजाक नहीं हो सकता, इसके अंदर बर्दाश्त करने की। किंतु वहां क्या है, जवाब पे जवाब। कृष्ण ने गलती से कह दिया चंद्रा, तो राधा जी ने भी जवाब दे दिया कंसारी। ऐसे जवाब मतलब मुंह, तो कृष्ण को वो पसंद है। तो जब तक हम वैसे भक्तों से सुनेंगे नहीं कृष्ण को क्या पसंद है, क्या चीज है। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरि बोल, टाइम हो गया फिर कभी, ठीक है।